In the previous lecture, we completed the acid base theory, Arrhenius acid base theory. In that, we discussed about a compound which loses H plus, known as acid, and a compound which loses OH minus is base. The limitation of that is it cannot explain the nature of oxides, basic oxides, which are in basic nature. It cannot explain. So today we are going to conclude two more theories. Laurie-Bronsted theory of acid base, and third one is Lewis acid base theory. The limitation of Arrhenius theory is cured by Laurie-Bronsted. So that's why Laurie-Bronsted theory is also known as relative concept of relative concept of acid base to the Arrhenius theory to determine acid and base. So this is the most important factor of the Laurie-Bronsted acid base theory. In this, we also learn about the conjugates, conjugate acid and conjugate base. This question is important for MCQ to determine conjugate acid and base. And third is also a very most important Lewis acid base theory, and it is a modern concept, a very modern concept to determine acid and base, a nature of the compound. So after that we move on to the ionization constant. So let us start today's session with Laurie-Bronsted acid base theory. One by one, and important points we note down that Laurie-Bronsted theory of acid base. Laurie-Bronsted theory of acid and base. So what Laurie-Bronsted said, that acid is that compound which loses proton. I will say proton donor is acid. Proton means H plus. Proton means H plus. So if you analyze the definition or you compare the definitions of Arrhenius acid and Laurie-Bronsted acid, so it is 100% equal. Arrhenius also said that कि जो कंपाउंड H प्लस को लूज करता है वो एसिड है, तो यहाँ पे भी Laurie-Bronsted का भी फॉर एसिड डेफिनेशन इज द सेम, बट द अंडरस्टैंड इज बेस which accept
एक्सेप्टर जो है वो बेस होगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द बेस चेंज, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओ एच माइनस था, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली हर एक स्पीसी बेस की तरह एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल से वन बाय वन देखते हैं, और मीन वाइल मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वी टेक HCl plus H2O. What happens here? H3O plus and Cl minus. This HCl loses H plus to H2O. This HCl loses H plus to H2O, therefore it is acid. This species accepts hydrogen, therefore known as base. Very simple. बेस H प्लस को एक्सेप्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। HCl यहाँ पे H प्लस को डोनेट करके क्या हो रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट। नाउ वी सी द सेकंड एग्जांपल, NH3 plus H2. What happens? Same, NH4 plus and OH minus. So NH3 accepts H plus, therefore act as a base. H2O becomes acid because it loses H plus. Third example, HCl plus NH3. What happens? So NH4 plus Cl minus. HCl always loses H plus and it accepted by ammonia. Therefore this is acid, this is base. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल तो समझ में आया सर। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, HCl ने क्या किया, लूज किया। क्या लूज किया? H प्लस। प्रोटॉन को लूज करके कहां पे कन्वर्ट हुआ? Cl माइनस में। देखना Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, therefore this Cl minus species act as conjugate। conjugate का मतलब रिलेटिव, ये एसिड है तो ये बेस होगा। एसिड का ऑलवेज होता है कॉन्जुगेट बेस एंड बेस का होता है ऑलवेज कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। इफ एनी स्पीसी, समझो यहाँ पे टेक्निक याद रख लो, एनी स्पीसी H प्लस को डोनेट करती है तो सामने जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। H प्लस को एक्सेप्ट करती है मतलब वो सामने जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो MCQ के अंदर आप लोगों को ऐसा दिया गया S-2, ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करके मान लीजिए हम लोग H2S के अंदर कन्वर्ट हुआ, सो दिस S-2 H2S सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड है। किसका कॉन्जुगेट एसिड है? S-2 का। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस S-2, सी हियर,
which accept H plus is known as a base. So this is base. S minus 2 is a base and it accepts hydrogen. Then this H2S species, this H2S molecule is known as conjugate acid of this S minus 2. Therefore, it is known as conjugate acid. A very simple fundamental thing is to memorize these four sentences only. If you memorize, if you clear your concept in your mind, then you will be solve any kind of question related to Lorentz acid base theory. अब इसके ऊपर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यहाँ पे एसिड जो है मतलब जिसके पास हाइड्रोजन होगा, समझे 99% के अंदर वो कहाँ पे जाता हो, मतलब जो स्पीसी H प्लस को लूज करती हो ओनली, वो सभी लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होंगे, वो सभी क्या होंगे, आर्हेनियस एसिड भी होंगे। तो समझना है। और बेस के अंदर ऑल द नेगेटिव स्पीसीज, समझो ऑल द नेगेटिव स्पीसीज जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकती हैं वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, बेस होंगी। फॉस्फेट PO4 माइनस बेस है, SO4 माइनस बेस है, S माइनस 2 हमने देखा, CN माइनस साइनाइड बेस होगा, O माइनस 2, O के ऊपर माइनस 2 चार्ज, दैट स्पीसी can accept H plus, so that is also known as a base, Lorry Bronsted base. Okay, so all the species which can accept hydrogen or proton is known as a base. और जो H प्लस को लूज कर सकते हैं वैसे एसिड H3PO4 लूज कर सकता है, H2CO3 लूज कर सकता है, H3PO2 लूज कर सकता है, HClO3 लूज कर सकता है। मतलब अब आप लोगों को यहाँ पे एक काम करना है, क्या काम करोगे, लिस्ट आउट मिनिमम 20 to 25 स्पीसीज, कितने, ये होमवर्क में आप लोगों को काम करना है, मिनिमम 20 to 25 स्पीसीज को लिस्ट आउट करो। दिस टाइप ऑफ एसिड मतलब जो कंपाउंड H प्लस को लूज कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो वो वीक हो, उससे अभी मतलब नहीं, लिस्ट आउट करो, मिनिमम 20 तो होने ही चाहिए। और बेस में भी आप लोग क्या करो, एक ऐसा लिस्ट बनाओ, नेगेटिव स्पीसीज तो बहुत सारी हैं, एसिड को ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन हो जाएगा, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, बट बात यहाँ पे आती है न्यूट्रल स्पीसी की। न्यूट्रल स्पीसी के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे फ्यूचर में भी काम लगेंगे और सम्स के अंदर भी बहुत यूज होता है इनका। न्यूट्रल में अल्कोहल को एंड एमाइंस को भी कंसीडर किया जाता है। एमाइंस, अल्कोहल को आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, एमाइन दिस आर एसिड्स, अल्कोहल्स ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। एमाइंस के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 टाइप ऑफ एमाइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी RNH2, secondary R means alkyl group. What is R? R means alkyl group, which already you studied in the 10th. And R double dash. This is tertiary. This kind of structures are known as primary, secondary, and tertiary amines. One another name you heard in future, that is
D. The structure of that compound is looks like this. In a benzene ring, there is a 6 carbons, but here 5 carbons with 1 nitrogen. Okay, so this is the structure of a pyridine. तो यहाँ पे तो this is Lorry-Bronsted concept of acid and base. Lorry-Bronsted concept of acid base. कोई भी रेफरेंस बुक आप लोगों के पास हो तो उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करो. क्या करो? क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ओके, लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशन भी हम लोग पहले लिखेंगे. सो लिमिटेशन ऑफ Lorry-Bronsted. लिमिटेशन क्या थी? इट कैन नॉट एक्सप्लेन. लिखो, इट कैन नॉट explain acidic nature of BCl3, FeCl3, AlCl3 and basic nature of C double bond O ion. This is the limitation of the Lorry-Bronsted theory. Just write down, and it may be asked with a concept in 2 marks. Now move on to the Lewis concept. Lewis concept of acid base. A very modern concept to determine acid base. चलो लिखें सबसे फास्ट. एसिड वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड. एंड बेस वो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड एंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो बेस. चलो तो सबसे पहले एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और इसके बाद टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया है. अब यहाँ पे क्या होता है, मैं छोटी सी एक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दूँ कि जब एसिड और बेस यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, दिस काइंड ऑफ एसिड बेस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, इन टाइप के रिएक्शंस के अंदर बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. टेक्स्ट बुक में पढ़ोगी तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है. ओके, शायद एमोनिया का और BF3 का एग्जाम्पल वहाँ पे लिया गया है. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, एक लोन पेयर होती है. ग्रुप 15 के पास एक लोन पेयर. तो वो लोन पेयर डोनेट करता है किसको? बोरॉन को. बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड इट फॉर्म्स नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो more electronegative than boron, so that's why nitrogen donates. नाइट्रोजन क्या करेगा? डोनेट करता है किसको? बोरॉन को, इलेक्ट्रॉन्स. therefore NH3 becomes base and BCl3 becomes acid. So in this way the reaction is given. So read it. Now move on to the classification. यहाँ एसिड में तो यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो Eg+ हो, वो Zn2+ हो, वो Copper2+ हो, सभी जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे अकॉर्डिंग टू लुईस थियरी
वो एसिड की तरह एक्ट करते हैं। नंबर 2, ऑल दी न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ पे कंसीडर होंगी। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वही ना, हर एक में यहाँ पे कंडीशन अप्लाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। ओके, फिर BF3 का मैंने अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाया। यहाँ पे बेस के अंदर क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, बेस में तो यहाँ पे ऑल दी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जितनी भी होंगी, Cl माइनस, S-2, O-2, ये सभी कैसे होंगे, बेस के अंदर कंसीडर होंगे। और मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया एग्जांपल कि NH3 इसके पास लोन पे, BF3 ये बेचारा डेफिशिएंट है। ओके, भले ही इसके पास फ्लोरीन है तो क्या करता है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ H3N डोनेट्स BF3। सो दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन, बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नाइट्रोजन ने डोनेट किए टू बोरॉन। हाँ, तो ये जो एरो साइड है वो जिसने एक्सेप्ट किए उस साइड आप लोगों को ड्रॉ करना। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। बहुत ही इजी है, कंप्लीट करो इसे, नोट डाउन करो। तो यहाँ तक ही आज रखें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट जाएगा, तो आज हम लोग स्टार्ट नहीं करते, एक साथ ही ले लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।